Now we start here the few terminology related in your thermodynamics. So पहला जो thermodynamics का terminology है वो है what is system and what is surrounding. And एक extra term तुम लोग को और देखने मिलेगा what is boundary. So system is anything which is under your thermodynamic investigation or observation. And other than that, the entire universe is your surrounding. I repeat, for example, एक practical example लेते हैं. Suppose करो तुम एक chemistry lab में हो और ऐसा एक फ्लास्क है. इस फ्लास्क के अंदर कुछ गर्म करने के लिए बर्नर के ऊपर रखे हो. ओके और इसके अंदर तुम लोगों ने एक थर्मामीटर डाल के रखा है which has some reading like this. Now तुम लोग क्या करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि कितना इस पे हीट अप्लाई करेंगे हम लोग तो इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो. You want to do this. Okay, so in this case what is your system, what is boundary, and what is the surrounding? Can anyone tell me? Yes. Sir, can you repeat? In this experiment is clear for everyone? In this experiment, yes, I just want to distinguish what is system, what is surrounding, what is boundary. System is something where we are interested or we observe that thing under thermodynamics condition. Thermodynamics का सारा पार्ट यहाँ पे हम जहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो होगा सिस्टम और उसको छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग. तो सिस्टम क्या है यहाँ पर? Temperature. Yes. Temperature is a factor. Temperature is not system. Temperature is a tube और उसके जो है factor which we measure. Temperature is a factor which we measure in our experiment. So here the system is this, your mercury or whatever thermometer, the water or the chemical inside the flask. Okay, and what? And the flask itself. Yes, that is your system. ये बर्नर मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है. बर्नर किस काम में आ रहा है? हीट प्रोवाइड करने के काम में. लेकिन मैं टेम्परेचर इसके अंदर माप रहा हूं. तो इनको छोड़ के बाकी सब कुछ, यहाँ पर जो तुम्हारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, यहाँ तुम बैठे हुए हो, एवरीवन, यहाँ पे टेबल चेयर है, एवरीथिंग इज योर सराउंडिंग. ओके, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग जो कर रहा है, नया बुक में 3 टर्म लिखा रहता है. वन इज सिस्टम, second is surrounding, third is boundary. So nowadays this flask is considered as the boundary between the system and surrounding. Is it okay? Is it okay? Yes. So in terms of thermodynamics, if you sum system and surrounding, the entire universe is around you. Now systems are of 3 types. One is called open system, closed system and isolated system. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे मैटर और वी समटाइम कॉल्ड मास एंड एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. जैसे कि अनंत का मैंने जो एग्जांपल लिया था वो ये था. अगर इसमें आप एक हॉट वाटर रखो या टी रखो और मिल्क रखो, इसमें से वेपर बाहर की तरफ जाता रहता है ना. तो अगर वेपर बाहर गया सो मतलब यहां से मैटर जो है बाहर निकल गया. ये मेरा सिस्टम था और बाहर सराउंडिंग है. सो मैटर और मास इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. एंड व्हेन वेपर इज evaporated from the top surface, then it means heat is also exchanged or temperature is also exchanged between system and surrounding. So heat is also coming out from the top surface as well as अगर ये steel है और कोई conducting material है तो heat यहाँ से भी बाहर निकलेगा, right?
So energy, heat means what? Energy. Energy and matter is exchanged between system and surrounding. This kind of system is called open system. I hope everyone agree with it. Next is closed system. Now suppose you have this steel cup and you just इसको ढक के रख दिए हो. Now matter is not exchanged between system and surrounding, but heat जो है इसके बॉडी से तो बाहर की तरफ जाएगा ना? Yes or no? So it means that energy is exchanged between system and surrounding, but mass is not exchanged. So that kind of system is called closed system. And if you not exchange the energy or mass between the system and surrounding, that kind of system is called isolated system. Example is thermos flask, जो मैंने example लिया था. यही reason है कि thermos flask के अंदर कोई भी चीज बहुत देर के लिए गर्म रहता है, क्योंकि ये यहां से हीट को बाहर नहीं निकलने देता. ठीक है ना? एनर्जी बाहर नहीं निकलता और मास तो बाहर निकलेगा ही नहीं अगर ढक के रखो. Everyone agree with this or not? Yes, sir. Aili, is it clear? Yes, So sir. now, now the first, ये जो अभी हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, क्यों ज्यादा हीटेड होता है, कौन कितने देर तक हीट रहेगा. So the answer is this, because first case is your open system, second one is a closed system, and third one is isolated system. So in isolated system, neither mass nor energy is exchanged, so it remain hot for a long period of time. But अगर मान लो तुम लोग एक थर्मस फ्लास्क के अंदर गर्म चाय रख के भूल गए 2 महीने के लिए और 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद वापस आके जब उस थर्मस फ्लास्क को ओपन करोगे तो क्या वो गर्म रहेगा आफ्टर 1 मंथ? यस? नहीं सर. नहीं रहेगा. इसको क्या लगता है अनंत? इट विल रिमेन हॉट और नॉट? Sir, hot. एक दिन रख के देखो, 1 दिन बाद ही ठंडा हो जाता है, 24 घंटे बाद. Yes, sir. उसका बहुत एनर्जी गर्म धीरे नहीं धीरे होता है. रिलीज होता ही रहता है. Yes, so that is the point. Nothing is called perfectly isolated system. दुनिया में perfectly isolated system नहीं बनाया जा सकता. हम लोग advance कर सकते हैं इसको, लेकिन perfectly isolated is next to impossible. Okay, that is why it not remain hot. Next is called परफेक्ट वैक्यूम नहीं बन सकता. perfect. Perfect. Sorry. Repeat. परफेक्ट वैक्यूम नहीं बन सकता मतलब इसका. नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट वैक्यूम भी नहीं बन सकता. यहाँ पे जो भी तुम लोगे ना, मान लो यहाँ एक्चुअली हम लोग लेते क्या है, कॉर्क वगैरह लेते हैं. ठीक है, कॉर्क लेते हैं और उसके आउटर साइड में प्लास्टिक होता है. दे आर बैड कंडक्टर्स एक्चुअली, बट दे कंडक्ट. ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन कंडक्ट थोड़ा थोड़ा करता ही रहता है, बहुत स्लोली करता है, बट ये कंडक्ट करता है. एक परफेक्टली इंसुलेटर तुम कहीं से मार्केट से नहीं ला सकते. इलेक्ट्रिसिटी का केस भी यही है. इलेक्ट्रिसिटी भी बोलता है देयर इज नथिंग इज कॉल्ड परमानेंट परफेक्टली इंसुलेटेड. आप अगर कॉपर में करंट फ्लो करवाओगे ये काफी फास्ट जाता है. अगर आप इसके बाद सिल्वर में कराओगे ये और फास्ट जाता है. एल्यूमिनियम में कराओगे थोड़ा स्लो जाएगा. आयरन में करोगे और स्लो जाएगा. और अगर मैं ऐसे कांच के बोतल में एयर को भर दूं और यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करूं तो क्या करंट फ्लो होगा इसके अंदर? Yes, sir. Very slow. नहीं, इन जनरल नहीं होता रहता है. लेकिन अगर आप पोटेंशियल बहुत हाई लगाओ, अराउंड अगर 10,000 किलो वोल्ट पोटेंशियल अगर आप अप्लाई करो तो करंट फ्लो होगा, विच इज एग्जाम्पल ऑफ योर लाइटनिंग. अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रहा था हर जगह. Yes, sir. तो लाइटनिंग ऐसे ही होता है. Yes, sir. लाइटनिंग तो एयर में ही होता है ना. सो वहां पे जब इतना हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अप्लाई होता है 1000 और 10,000 और इवन 1 लाख किलो वोल्ट, देन
even air like bad conductor conduct electricity. So there is nothing called bad 100% isolated system or 100% insulator. ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एज इन क्या होता है? प्रोसेस का मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी एक आप काम कर रहे हो, उसमें टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज हो सकता है. ये करते वक्त आप उसको किस तरीके से करना चाहते हो? जैसे कि आप घर पे अंडे बॉईल कर रहे हो, चलो सबसे आसान काम, मैं चावल बनाना भी नहीं, ठीक है, आप अंडे बॉईल कर रहे हो घर पे खाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में. इट इज ऑल्सो अ thermodynamic process. Why it is thermodynamic process? Because you apply heat here, a system inside it whose temperature is changing, and some amount of heat and mass is exchanged between system and surrounding. So it is also a thermodynamic system, and heating a egg or boiling a egg is your thermodynamic process. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आप कैसे करना चाहते हैं. ठीक है, बहुत सारे तरीके से किए जा सकते हैं. पहला तरीका हम लोग का आता है विच इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? आप कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स में जहां पे आप टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दे रहे. आइसो मीन्स मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स नो चेंज. आइसो वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना, आइसो का मतलब सेम रहना, हर चीज चेंज नहीं होना. ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आप टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दे रहे हो. कोई ऐसा एग्जांपल बताएगा मुझे, ऐसा कोई काम जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो? यस, बिरबल की खिचड़ी याद है किसी को? कोई कहानी सुना है बिरबल की खिचड़ी? आईली, हाँ सर. आईली सुनी है? हेलो सर नहीं सुना. यार, तुम लोग कहाँ रहते हो, कौन से वर्ल्ड में? सो बिरबल ने एक बार क्या किया था, अकबर को सबक सिखाने के लिए एक खिचड़ी जो है बहुत ऊपर, यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, सपोज 10 फ्लोर के हाइट पे खिचड़ी को रख दिया था और नीचे यहाँ पे हीट अप्लाई किया था, मतलब आग जला के रखे थे यहाँ खिचड़ी पकाने के लिए. तो क्या ये खिचड़ी कभी पकेगा? नो सर. नहीं sir. सो दैट इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. यहां से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जा रहा है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, और उतना अमाउंट ऑफ हीट ये आराम से उतने टाइम में वापस सराउंडिंग को दे दे रहा है. सो जितना हीट इसके पास आ रहा है उतना हीट वो वापस चेंज कर दे रहा है. सो इस पूरे केस में टेम्परेचर जो है इस सिस्टम का वो कभी चेंज ही नहीं होगा. सो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0. इतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं समझना है, एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो. एक आयरन का बार है और आप इसको हिट कर रहे हो, ठीक है, इसको किसी चीज से हिट कर रहे हो, इतना स्लो हिट कर रहे हो कि जितना आप हिट कर रहे हो उतना हिट ये वापस रेडिएट कर दे रहा है. सो इन दैट कंडीशन it is isothermal process. Remember, all chemical process are isothermal process under very slow condition. जब भी कोई रिएक्शन बहुत स्लोली होता है तो उसमें जितना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो वापस सराउंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है. दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड दिस इज द कंडीशन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0. डेल्टा टी का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. एवरीवन एग्री विद दिस प्रोसेस? समझ में आया? यस सर. Yes sir. Second is called adiabatic process. Adiabatic means what? Change in heat is equal to 0. बस इसको याद रखो नाम के साथ. Adiabatic means change in heat is equal to 0. Means heat is neither total change in heat, means final heat जितना होगा सिस्टम का, इनिशियल हीट भी उतना ही होना चाहिए. मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग.
इफ यू डू दिस, अगर मैं हीट चेंज ना करूं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज होगा। यस और नो? यस सर। सो इस केस में याद रखना, जब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते हैं, वो प्रोसेस कभी भी आइसोथर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम चेंज ना करें, हीट चेंज ना करें तो टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज हो, है ना। जैसे इस आयरन बार के अंदर अगर मैं हीट को बाहर ना निकलने दूं तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर विल इंक्रीज। यस सर। थर्ड वन इज कॉल्ड आइसोकोरिक। कोरिक वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना, कोरिक वर्ड रिलेटेड टू वॉल्यूम, ये कुछ लैटिन टर्मिनोलॉजी है। So isocoric process means the change in volume of the system will equal to 0. Means no compression, no expansion. वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करो। एंड फोर्थ वन इज योर आइसोबेरिक। बेरिक वर्ड रिलेटेड टू प्रेशर, ऐसे ही याद रखो, बेरिक मीन्स प्रेशर, सो इट इज in this case change in pressure is equal to 0. Last one is called your cyclic process. In cyclic process, the total internal energy of the system is always equal. Cyclic process में change in internal energy of the system is equal to 0 होता है, या फिर change in enthalpy 0 होता है। ये क्या है थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरनल एनर्जी और इंट्रोपी। साधारण भाषा में समझो, मान लो एक प्रोसेस ए था, ए बना था हुआ, इसमें मैंने कुछ हीट अप्लाई किया या निकाला तो ये बी बन गया, बी से सी बन गया, सी से फिर मैंने डी बनाया, और डी से वापस मैंने ए बना दिया। तो जब यहाँ पे हम लोग गए तो यहाँ U1 होगा इंटरनल एनर्जी, यहाँ इंटरनल एनर्जी U2 हो गया, यहाँ इंटरनल एनर्जी U3 हो गया, यहाँ इंटरनल एनर्जी U4 हो गया। बट टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी 0, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज U फाइनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। अगर कोई भी प्रोसेस ऐसे साइक्लिक वे में चल रहा है, सो उसका टोटल एनर्जी जो होगा कांस्टेंट होना चाहिए। इज इट ओके एवरीवन? सर या सर, वो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें जो चेंज इन हीट हमारा 0 हो रहा है, तो टेम्परेचर कैसे चेंज होगा सर? ओके, सो टेक एनी एग्जांपल, मुझे बताओ कैसे तुमको लग रहा है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एनी एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट और परसेप्शन। या सर नॉर्मली किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करने से तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है सर। लुक हियर, सपोज दिस इज अ पिस्टन, ये एक पिस्टन है। अब मैं क्या करूंगा, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इस पिस्टन को अगर मैं स्लोली प्रेशर अप्लाई करके नीचे की तरफ लेके जाऊं, देन व्हाट हैपन, पिस्टन विल शिफ्ट हियर। सपोज इनिशियल प्रेशर इसके ऊपर P था, इसका इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V था। अब प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करके मैंने P प्लस P1 कर दिया, तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे V2 हो गया। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो सिस्टम में हीट जनरेट होगा, यस और नो? If you compress it, then obviously Yes, sir. heat will be generated because यस सर। yes. But if you don't allow that heat to come out from the system, then what happen? We not apply heat here. प्रेशर बनता है सर। Yes, मैंने हीट यहाँ अप्लाई नहीं किया है। सिस्टम में जो हीट था वही सिस्टम का हीट है। ओहो सॉरी, स्क्रीन इज गॉन। आई होप एवरीवन ओके विद इट। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर मैंने अप्लाई किया, मैंने हीट अप्लाई नहीं किया, हीट इंक्रीज नहीं किया मैंने इसका अपने बाहर से, हीट खुद ब खुद इंक्रीज हुआ है।
लेकिन मैंने क्या किया, इसको बाहर नहीं निकलने दिया, देन क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर सर एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब एडिबैटिक प्रोसेस में खुद वो ही कर सकते हैं, उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। Your voice is breaking so much. In short, simply समझो, एडियाबेटिक प्रोसेस में आप बाहर से हीट अप्लाई नहीं ले रहे हो। आप हीट अगर बाहर से अप्लाई करोगे तो फिर इनिशियल फाइनल अलग हो जाएगा। हीट एक पैरामीटर नहीं है, हीट को मापने के लिए हम लोग टेम्परेचर को यूज करते हैं। सो किसी सिस्टम के अंदर से अगर मैं हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा हूं तो मैं कहूंगा कि हाँ ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि मैंने उसमें से हीट को बाहर नहीं निकलने दिया। पहले से जितना हीट था अपना उसके पास उतना ही है, उतना ही एनर्जी। अगर ऐसा आप करोगे तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Next is your reversible and irreversible process. Everyone okay with it? I think so, क्योंकि पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो equilibrium and all these things. So a process is reversible or chemical reaction is reversible means what? It reactant produce product and product react back to produce reactant. ठीक है? Rate of forward reaction, rate of backward reaction. When rate of forward is equal to backward, then the system is achieve equilibrium state, isn't it? So वो chemical reaction में जो चीज होता था प्रोसेस में भी Yes, वही sir. बात होता है। अगर मैं कोई एक प्रोसेस कर रहा हूँ जहाँ पे A और B आपस में कुछ C और D बनाता है तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर C और D वापस आपस में रिएक्ट करके A और B बनाने लगे इस प्रोसेस में, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गया इस प्रोसेस का। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसमें कभी इक्विलिब्रियम वर्ड आता ही नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, रैपिडली ए और बी रिएक्ट हुआ, फटाफट सी और डी बना दिया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में याद रखने वाली बात क्या है, ये काफी रैपिड होता है, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, काफी स्लो होता है, इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सर इरिवर्सिबल का एग्जांपल देंगे क्या? किसका? रिवर्सिबल का? इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल Yes, irreversible is an example of nuclear reactions like your fission, fusion, this kind of example. Precipitation. ओके सर। Precipitation is also example of your irreversible process. Precipitate जब बन जाता है तो वापस वो dissolve नहीं होता है. This kind of examples. ओके सर। Next is variables of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब वो पैरामीटर्स जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर आप थर्मस में एक थर्मामीटर डाल के आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हो। आप किसी चीज का प्रेशर चेंज कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो दिस आर द वेरिएबल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। And these variables are classified into two types. One is called state variables and another is called path variable. So if any variable depend on the initial and final state only, but not on the path it traverses, that kind of variable is called your state variable. जैसे सपोज करो आप टेम्परेचर के ही बारे में सोचो, आप कोई एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, उसका पहला स्टेट ए था और फाइनली आपने बी बना लिया, ऐसा कुछ आप कर रहे हो। जब आप ऐसा कर रहे हो आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। आप इसको ये फर्स्ट तरीके से कर सकते हो, आप इसको सेकंड तरीके से कर सकते हो, आप इसको थर्ड तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपको क्या बनाना है, आपको एक आयरन रॉड को गर्म करके इसको चाकू में कन्वर्ट करना है, नाइफ में, ओके। दिस इज अ आयरन बार। तो इस आयरन बार को आप चाकू में बहुत तरीके से कर सकते हो। इसको गर्म करो फिर ठंडा करो फिर गर्म करो फिर ठंडा करो, ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंपली एक बार में इसको गर्म करके आप बना सकते हो। सो इट डिपेंड ऑन यू। बट व्हाइल डूइंग दिस, इफ आई जस्ट वांट टू नो द इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इट अचीव, क्या ये डिपेंड करता है पाथ के ऊपर? नो सर। Initial temperature suppose 30 degree Celsius, final temperature is 100 or 1000 degree Celsius.
इट डजेंट मैटर इन व्हाट पाथ, किस मशीन में इसको आप हिट किए हो, कोयले में जला रहे हो या बर्नर पे हिट कर रहे हो, किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है उसका टेम्परेचर। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टी है लाइक प्रेशर, द वॉल्यूम, entropy, enthalpy, they are new terms, we will discuss it later on. Internal energy, mass and density. You have to remember, keep in अच्छा ये mind, सब स्टेट वेरिएबल्स हैं। yes, you have to remember this, that they are state variables. State variables are independent on the path. In examination, some options are given to you and you have to separate which one is state variable, which one is path variable. That is why I told you, remember them. Is it okay? And path variable is depend on path, just like work done, heat, etc. In what path is it evolved, or in what path the work is done. मैंने work done तुम लोग को recently पढ़ाया है। work done में मैंने पढ़ाया था conservative work done and non-conservative work done. So non-conservative work done is path dependent, right? Remember anyone? यस सर। Non-conservative work done is path dependent. And remember, conservative work done is not path dependent. Okay, so any question till now? Otherwise I'll send you another link to join. यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो Yes, पूछ sir. सकते हो। नो सर। No, sir. Okay, then I'll send you link within 2 minutes.